چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ ایسی تخریب کاری کی کارروائیاں ہو چکی ہیں جن میں خواتین خودکش حملہ آوروں کا استعمال ہوا۔ 16 ستمبر کی رات کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تربت اور جو پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ایک شخص نے رابطہ کیا کہ ان کی ایک بیٹی جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ چل رہا۔ چونکہ جتنے واقعات گزشتہ کچھ عرصے میں ہو چکے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی پروفائل طور پہ اس چیز کو دیکھا گیا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کے پروونشل جو پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہائی پروفائل طور پہ اس چیز کو دیکھا گیا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کے پروونشل جو پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اور پھر دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جن میں خاص کر CTD انہوں نے اس فیملی کے ساتھ انگیج کیا اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ تربت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایک نرسنگ کے شعبے سے منسلک ایک خاتون جن کا نام عدیلہ ولدیت خدابخش بتائی جاتی ہے وہ مسنگ ہے۔ اور پھر لازمی سی بات ہے فیملی کی طرف سے جب ریاست یا اس کے اداروں سے یہ رابطہ کیا گیا تو پہلی ترجیح ان کی بازیابی کی تھی اور بحفاظت بازیابی کی تھی۔ اس کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ فیملی نے بھی جسے کہتے ہیں کوآپریٹ کیا اور اپنا جو رول تھا وہ پلے کیا، جس کے نتیجے میں آج عدیلہ ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہم چاہیں گے کہ عدیلہ کیسے مسنگ ہوئی 19 ستمبر کو اور اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی، کیوں وہ مسنگ ہوئی، وہ کہاں گئی تھیں، یہ کہانی وہ خود آپ کے سامنے رکھیں۔ میں درخواست کروں گا عدیلہ سے کہ وہ آپ سے بات کریں۔ السلام علیکم، میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق جو ہے تربت سے ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تربت میں حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نرسنگ کے کورس کوئٹہ BMCH میں کیا اور ابھی میں کوالیفائڈ نرس ہوں۔ میں ڈیوٹی بھی کرتی ہوں، ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں WHO میں۔ میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا، مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکش کرنے کے بعد میری جان چلی جائے گی، لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے، میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا۔ مجھے بہت بہکایا گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی، ادھر جا کے میں نے دیکھا، میں نے وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی۔ وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایسے سخت حالات تھے، ان کے ایسے سخت رویہ تھا۔ وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بہکائے ہوئے تھے اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے۔ یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کے ان کو بھی لے کے سے گئے تھے۔ یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں، ورگلا کے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایسے سخت حالات ہیں کہ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور آج میں بچ گئی ہوں۔ یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوں تاکہ وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ جو نوجوان گئے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ورگلا کے ان کو لے کے گئے، شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں حکومت بلوچستان کا کہ عربی ان کی وجہ سے میں بچ گئی اور میں ان کے وکٹم ہونے سے بچ گئی۔ میں بہت بڑی گناہ کر رہی تھی، اور میں آج سروائیور ہوں، میں بچ گئی ہوں۔
इनके नाकाम इरादों से मैं बच गई। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके वालिद भी कुछ बात करना चाहेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Matunga pa mat na sim chokshi bi mat chokwani ne garibi ma sinkani ma sim gwandu bilu wana sharba me asta chini ba ma azte me gwandu pada wana pada ma iwad kana bazzak be ma chin kani ma te gwandu achu bazzagi pa wani intega pet buta ma buta achu bazzagi brata bichar bazzaga log ne jaga ne ma sim gwandu wana me walkene ka ami sharbi me sahulat kamo sharbi kamu me chin sharba mana danta ke me gwandu pada wana ga pada durante rawa iwad chin kanante istemal kanante jani chokki ni adi inu jani chokkani chho istemal kan bahut guna rasi na ke chin bitte ganter guna mar don gark bi jani chokkani adi chani ma tam bare logo to ko chum piske mana danta warag chi brat kapta mat kapte mat ke hukumat daftaran ma हमेशा हमारा सहारा दाता हमें मैं ब्रात का हमारा सहारा दाता हमारा सहारा है इसलिए मैं सारा सब्जी आसमान में आ जाए न कि हमारा लोग अस न कि हमारा जाग अस मस्त भगवान ये गंडो बेवास नहीं बा मर्ची में आलिश याद कई वड़े बाप जो बस जगीरी वो कसानी क्या कसिया ना लूटता मैं तो मेरा अल्लाह बेदा मेरा अल्लाह बेदा गंडो के विषय भी तो मैं गाल भी तो 4 साल में वानी था मैं भजगी को था मैं लोग तो कनेक्ट गोद दूध का बल्कि मेरे इस में लोगों को जागा है बेचारे में चौका नहीं मानते नौकरी ना इंचो चार दा क्लास वंत गए नौकरी नहीं नौकरी से गरीबा नहीं वास्ता नहीं आ रहा कागदा जमा करना पता कहाँ उसका निश्चित का बस जिगी दिया शम हमारा नौकरी ना रिसी अल्लाह करे बोल उठे रावण दरिया है बस आदि मगर जरा लट्टा कोश्ता ठीक बड्डा अंते कहाँ लोग ना के वर्गिया ना के तामिया ना के कपते ऐसा नहीं चौका बार ऐसा नहीं माता पिसका ऐसा नहीं माता नहीं दिला हाथ कस्ते ये माता बस जगह ये वर्ड माका ना शर्ने शो हमें ब्रात है anche show anchi me brate castine I wad makane I mat chu piska mana na to wargi chi nyadi log to ko dar ke mat pareshan nabi har ke sutela dasta pe beka ke nyadi baral kar chi sanjiti marchi shi mani chokat ka met kingal manu allah bezan bu chi ni par poste ge nu bibele bam baste nu shin ko te no rate postan mo chok ma garibi me ko ja rawi mare jaga sahara ni mar kasuti sahara nada ma garibi utin logan istegi na ke मारा ची क्या ना मारा ऐसी ना करना उठान टीबा मार दो मैं उठ के कोट्टा बस मार दो नहीं मारा का सार ना दे मैं गंडो वंता गंडो ऐसी नौकरी नरतियाँ मैं गंडो बस जगह चुमार ये माता ने दिल चुपिस्की माता चुप बस जगह मार करे बस हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम है और ये मेरी बेटी ये मेरे घर वाले हैं। मैं बेसिकली बैंक मुलाजिम हूँ कराची में, वहाँ मेरी ड्यूटी होती है कराची में बैंक में। और मैंने अपनी तनख्वाह से सैलरी से अपने घर को भी चलाया, इनको भी पढ़ाया, सबको मेरे को कि आप पता है एक बैंक की ज़िंदगी क्या होती है, सिर्फ सैलरी होती है उसकी। इसी सैलरी मैंने अपने घर को भी चलाया, बच्चों को भी पढ़ाया ताकि ये आगे एक इंसान बने अपने कौम के लिए, अपने बाकी इलाके के लिए। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला अब्बा मैं डॉक्टरी करूँगा। मैंने बोला मेरे पास नहीं, फिर भी मैंने उनको पढ़ाया क्योंकि मुझे पता था कि ये काबिल है, पढ़ाया, एक काबिल बनाया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत और उनकी हौसले ने वो कामयाबी हो गई। फिर उनको जॉब भी मिल गई वहीं पे। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जब मैं था, मेरे बच्चे थे, हम उसमें थे। तो अचानक ही एक्सीडेंट हो गई, चलिए एक वक्त पहले। मैं कराची था इस टाइम, मुझे जब इन्होंने बताया कि बेटी मिसिंग है तो मेरे वो पता नहीं उस जिसकी पीटिंग मिसिंग होती है उस टाइम उसका क्या हाल होता है वो जानती है। तो मैंने वो दौड़े जब घर गया तो पता चला भाई उनको कुछ लोगों ने वर्गलाया है और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पे ले गए।
जब मैंने ये सुने कि ये हालात हैं तो उसमें मेरे क्या हालात हैं वो मैं जानता हूँ। तो मैंने उसमें कहा मैं अभी करूँ क्या, क्योंकि वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मिशन होती है कि वो ऐसे बंदे अपने साथ ले जाएं अपने मकसद के लिए। उसमें कोई आज़ादी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए। बच्चों को बंद बांध के उनको कहीं टकराते हैं और उनकी लाशें पता नहीं सर कहाँ वो कहाँ। ये ऐसी हालत मुझे समझ के अभी मैंने सहन में यह बस अभी सिर्फ हुकूमत के पास जाना चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा वो किसी के पास नहीं था कि मैं जहाँ लट के वो ले गया था, वो एक तंजीम के पास थी और वहाँ पे जाना मेरी बस की भी बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, भाई मेरी बेटी मिसिंग हो गई है, इतलात के मुताबिक उन लोगों के कब्ज़े में है, अगर आप उनको छुड़ाएंगे तो वो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं तो नहीं चढ़ सकता उनको। अगर वो कल उनको बांध के किसी चीज़ पर टकराएँ, किसी फौजी को मार दें तो फिर मेरे गले पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात सुनी, बरवत कार्रवाई करके उनको रिलीज़ कर दी। आज जो ये यहाँ बेटी है मेरी भी, ये हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की मेहरबानी है जो यहाँ बेटी हुई। और मेरी आप लोगों की तरफ से हम वहाँ से इसलिए आया हूँ, मुझे लोगों में अपनी मर्जी से हम सारे यहाँ पे जो है आप लोग वहाँ बताने आए कि हमने कोशिश की अपने बच्चे बताने की, मेहनत की। जो बच्चे उसने मुझे बताया वहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो बड़े छोटे बच्चे बंदूक लाए, वो भी किसी के बेटे हैं, खुद बेटे हैं वो पसंद, वो भी किसी के हैं। वो मेहनत करें अपने वहाँ पे, जो भी ऐसे माहौल हो वो सरकार के पास जाएं, क्योंकि वही बचा सकता है हमें। हमारे वो हम कुछ कर नहीं सकते। और मेरी आप लोगों की तरफ से कुछ पैगाम आते हैं, वो माँ बाप के लिए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपनी बच्चों को जो एक्टिविटी है वो नज़र पे रखें। और मुझे वो बच्चों को भी अब तुम्हें बताना है कि जो एक्टिविटी है जो उनको महसूस हो रहा है कुछ हो रहा है वो अपने फैमिली को शेयर करें। और वो जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, वो जो लेक्चरर होते हैं उनको भी मेरी तरफ से आप लोग पैगाम भेजें कि उनकी एक्टिविटियाँ चेक करें, आया वो किसी गलत रास्ते में नहीं जा रही। इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करें तो बड़ा हादसा होने से तो इससे वो बच जाएंगे। और मेरी आखिरी एक पैगाम वो पहाड़ों के लिए भी है, जो पहाड़ों में बैठे हैं, वो भी बलूच हैं, हम भी बलूच हैं। आप मुझे बताएं, एक बलूच की बेटी को यहाँ उठा के ले जाए अपने पर्सनल ज़ात के लिए, ये कहाँ का बलूच है यार? ये कौन सा बलूच? जो मैं बलूच हूँ, जो वहाँ बैठे वो बलूच, वो मेरी बेटी को यहाँ से उठाएँ, वो बांध के वहाँ पे ले जाएँ ज़ाय करने के लिए। हमने उनको पढ़ाया थोड़ी, इसलिए थोड़ी बनाया कि वो वहाँ जाकर ज़ाय हो जाए। हमने ऊपर खर्चा इसलिए तो नहीं किया कि वो यहाँ पे वर्ग ला के जाके वहाँ पे पहाड़ों में जाकर किसी के ऊपर पढ़ दें, ठीक है ना। असल ये मैं जो एक और पैगाम पाया तो जो बच्चों से जो मतलब सोशल मीडिया में देखते हैं, जो उनकी मतलब जो चीज़ें देखते हैं वो दरअसल कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रूफ करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ जो बच्चियाँ वो देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारी आवाज़ उन पहाड़ों तक पहुँचाएँ, ताकि कोई अगर एक बंदा वापस आ गया तो समझो हमने एक इंसान को वापस ले आया, ठीक है। रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। जिस तरह आज आप लोगों ने तफसीलन अदीला का भी बयान सुना और उनके बाप के कांपते हुए हाथ भी देखे। बलूचिस्तान की सरज़मीन पे रहने वाले सब और स्पेशली बलोच, मुझे तो ये हैरत होती है कि हम अपने आप को बलोच कहते हैं और हमारी तो ये है कि हम तो अपनी इज़्ज़त पे जान देने वाली कौम है। और बहुत अफसोस के साथ कि हमारे ही हाथों हमारी माएँ और हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं। बलूचिस्तान को क्या चाहिए, हमें ये देखना है। पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी भी ज़वाल नहीं। और ये अदीला आप लोगों के सामने बैठी है, ये एक जीती जागती मिसाल है कि रियासत ने हमेशा
माँ होने का सबूत दिया, हुकूमतों ने हमेशा माँ होने का सबूत दिया, और रियासत ने हमेशा ज़िंदगी बांटी। और दूसरी तरफ आप देखें कि वो जिस तरीके से ख़तरनाक मौत का खेल खेल रहे हैं, लेकिन रियासत ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी भी खुले बाजुओं के साथ रियासत ने अदीला को कबूल किया है, उसकी फैमिली को कबूल किया है। और आज मैं उन बलोचों को भी ये पैगाम देती हूँ कि खुदारा इस लड़ाई को बंद करें, जिसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान की जो मासूम अवाम है उनका है। और इसके साथ साथ मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, और अपनी हुकूमत को और वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। और इंशाअल्लाह हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हकूक़ की बात यहाँ मैं एक बहुत अहम पैगाम ज़रूर दूंगी कि हकूक़ की बात करने में कोई मुज़ाहिका नहीं, लेकिन जहाँ बात आएगी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, रेड लाइन की, वहाँ रियासत किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो खुदारा इस आपस की जंग को भूल के वापसी का रास्ता इख्तियार करें, और बल्कि ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो उनके पास कैद हैं, मैं उनके माँ बाप को भी ये पैगाम दूंगी कि वो रियासत से, हुकूमत से ज़रूर राब्ता करें, और जो भी मदद आप मांगेंगे हम आपको देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान या पाकिस्तान, इस पे बसने वाले सब हुकूमत के, रियासत के बच्चे हैं, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ एक और बात ख़वातीन के हवाले से भी आप ये देखें कि हमारी जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है हमारी बच्चियों की, हमारे बच्चों की, तो ये किसी तौर पे भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, कोई सवाल? ये बताइए अदीला के पहाड़ों में आप कैसा महसूस किया, और पहाड़ों में मैं 3 दिन रही। वहाँ पे ऐसे सख्त हालात थे ना, वहाँ पे खाने को है, इसे चारों तरफ पहाड़, और को किसी को देखो हाथों पे बंदूक लेके खड़े हुए। अदीला ये बताइएगा पहाड़ों में जब आप थी तो वहाँ पे आपके अलावा और कितने खुदकुश बमबार तैयार किए गए थे? दहशतगर्दों की तादाद कितनी थी वहाँ पे? जब मैं वहाँ पर थी मेरे अलावा एक और लड़की थी, मुझे नहीं पता कि क्या नाम है इसका, वो कहाँ से आई, वो भी इसी तरह, उसको भी वलगरा के लेके आए थे, लेकिन वो भी मजबूर थी। वहाँ पे इस तरह है कि कोड नेम होता है, हर किसी को एक कोड नेम देते हैं। जी जी, इसमें इन 3 दिनों की जो सूरत-ए-हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप नौजवानों को, ख़ुसूसन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम अपने ज़ुबान बलूची में देना चाहती हूँ ताकि मेरे बलूच भी सुने। मन ए गोशक लूटी वती राजा वती कोमा के ई वड़ी गलती के मन को था भाईदे शुमा मकनी इशिया ची नुकसान कया भी मैं जिंदा भी ई वड़े मुल्क के आज़ादी नबी आका ई राया के मन शुतूं मना गलती मर्दमे उड़ी राया बोर्ड आका शुमे जिंदगी चुशी मर्दमियात चुशी गलती राया बो खुदाए वास्ता वती मात पिता बगुशी ई गप्पा वती मस्तरी न बगुशी कि ई वड़ी मर्दम ई वड़ी चीज़ में गुम बुआ गई शुमा भी ई राया मर हुए ई रा बर्बादी राई एक वती जिंदे कुशक यक हरामी पद अमी राय गिरम भरा ये चीज़ गलती शुमा बायदी उड़ी चीज़ में आई कि मन गलती कोता मन न लुटी कि शुमा ई गलतियाँ पता भी करेगी। अदीला का पैगाम जिस तरीके से आपने सुना कि उसने यही कहा कि मुझे वरगला के ले जाया गया और जो गलती मैंने की वो बाकी बच्चे बच्चियाँ ये गलती ना करें, इसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही है और हमारे मुल्क का है। तुर्बत से गिरफ्तार खातून खुदकुश हमलावर अदीला बलूच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ, मैं बदकिस्मती से ऐसे लोगों से राब्ते में रही जिन्होंने मुझे बहकाया। मैं पहाड़ों पर गई तो मुझे गलती का एहसास हुआ।
मैं खुदकुश हमला करने पर आमादा हो गई थी। बलूचिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं बच गई। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग मुझे वरगला कर ले गए, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तमाम लोगों को यही पैगाम दूंगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में खुदकुश हमलों के लिए खवातीन को इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़े गुनाह से बच गई हूँ। उन्होंने साथ ये भी कहा कि दहशतगर्द हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। खवातीन को दहशतगर्द अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि उनके वालिद की जानिब से कहना था कि मैंने तनख्वाह से घर चलाया और बच्चों को पढ़ाया। बेटी के लापता होने के बाद कर्ब और मुसीबत में वक्त गुजारा। अपनी तनख्वाह से घर का खर्च और बच्चों को तालीम दिला रहा हूँ। मैं बैंक मुलाजिम हूँ, कराची में नौकरी करता हूँ। दहशतगर्द लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की वजह से मेरी बेटी बाजियाब हुई। मैं पहाड़ों में 3 दिन रही, ऐसा कहना था अदीला बलोच का। उन्होंने कहा कि वहाँ बहुत सख्त हालात देखे मैंने। पहाड़ों में मेरे अलावा एक और लड़की भी मौजूद थी। एक लड़की को भी बरगला कर लाया गया था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोड नेम दिए जाते हैं सबको और कोड नेम से पुकारा जाता है। और एक लड़की वहाँ पर और भी मौजूद थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आई थी, लेकिन उसको भी इसी तरीके से बरगला के लाया गया। जब ये लोग पहाड़ों पर लेकर जाते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है और वहाँ पर जो है तमाम लोगों के हाथों में असलहा होता है। मैं 3 दिन वहाँ पर रही तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस काम से बाहर निकाला, इस माहौल से बाहर निकाला और आज मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ। उन्होंने कहा कि ये ब्रेन वॉश करते हैं और बहुत बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है जिसमें हमें इल्म नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ और मैंने वहाँ से डिग्री हासिल की है तुर्बत से और वहीं पर मैं पैदा हुई और उसके बाद मैंने तालीम हासिल करने के बाद जॉब अपनी शुरू की और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से इस राह पर चलती गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पहाड़ों पर मैं गई तो वहाँ का माहौल देखकर मैं बड़ी खौफज़दा हो गई। 3 दिन मैं वहाँ पर रही और वहाँ के माहौल को देखकर मैं इस तरह से महसूस कर रही थी कि कैसे मैं इधर से बाहर निकलूँ। साथ ही वालिद की जानिब से भी ये कहना था कि जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी को पहाड़ों पर ले जाया गया है और मैं अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान था। मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, उनसे बात की और आज हम यहाँ जो बैठे हैं वो अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं और तमाम लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के माहौल से बाहर आए और लोगों की गुफ्तगू। ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़रीन मक्सी साहिबा। ज़रीन मक्सी साहिबा, जिस तरीके से आज हमने गुफ्तगू की है और ये हमने गुफ्तगू सुनी है उस पे हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो अदीला की बातें हैं या अदीला ने जो गुफ्तगू की कि दहशतगर्द किस तरीके से बरगला कर लेके जाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और इस तरह से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं या मर्द भी हैं जो इस चीज़ का शिकार होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़रीन मक्सी है एक्चुअली। मैं जी समझता हूँ एक फोर्सेस के लिए, एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए, हमारे बलूचिस्तानियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन आप देख लें या टैक्टिकली देख लें तो कामयाबी है, किसी की जान बची है और खुदा ना खास्ता अगर ये अटेम्प्ट कामयाब होता और ये कर लेती ये मासूम खवातीन तो मैं समझा हूँ हम ही इफेक्ट होते, हम ही मुतासर होते, बलूचिस्तान के लोग मुतासर होते। मैं समझता हूँ इट्स वेरी बिग सक्सेस। और एक और चीज़ मैं करना चाह रहा था, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो वायलेंस है, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है जी, ये हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बिल्कुल नहीं है। दिस इज अगेंस्ट आवर टीचिंग्स, अगेंस्ट आवर तरबियत और ख़ास कर जो चीज़ें हमको सिखाई गई हैं एज अ बलोच, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो बिल्कुल खिलाफ हैं। तो वी कंडेम दीज एक्ट्स। और मैं ये कहना चाह रहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज पूरे दुनिया में जी ये ऐसे नहीं होता कि कोई एप्रीहेंड हुआ क्रिमिनल और उसको बिठाया जाता है एंड गुड जेस्चर आप समझ लें फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये कहना चाहता था। अच्छा ज़रीन साहब, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ब्रेन वॉश की बातें की जाती हैं, ये कैसा नेटवर्क होता है, किस तरीके से काम अपना करता है? क्योंकि एक माहौल बनाना, फिर उसमें से ख़वातीन को वर्गलाना, फिर नौजवान बना, इस तरह से कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगा देते हैं। बिल्कुल जी, देखें ये ऑब्वियसली बड़ा सा डीप और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है एंड इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मगर ये मैं कहूँगा ज़रूर कि मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ नौजवानों को जी, दिस जो भी वायलेंस है
जो भी एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है, जो मैं कहता हूँ टेररिज्म है जी, दिस इज नॉट जस्टिफाइड ऑन एनी एस्पेक्ट. आप मॉरली देख लें, एथिकली देख लें, आप के हिसाब से देख लें, आप अपने हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से. तो मैं यही मैसेज दूंगा जी, गुमराह नहीं हुए, और दिस इज नॉट जस्टिफाइड. दे प्रे ऑन द वीक माइंडेड. और मैं समझता हूँ तो मेहरबानी करके जो पूरे जवानों का बलोच नेशन से अपील है कि इनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आना और इनकी जी वर्गलाने और इन चीज़ों में जी नहीं आना प्लीज़. ठीक है, ज़रीन मक्सी साहब अब हमारे साथ ही रहेगा. ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया. राशिद वली साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी जिसमें अदीला बलोच जो है वो वाज़ेह तौर पर ये कह रही हैं, अपने कर्ब को बयान कर रही हैं कि किस तरह से उनको ब्रेन वॉश करके ले जाया गया और वहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटीज़ उन्होंने देखी वो एक्टिविटीज़ से काफ़ी घबरा गई. और उसके बाद वो यही पैगाम आज भी दे रही हैं कि जिस तरह से नौजवानों को वर्गलाया जाता है और ले जाया जाता है और इस तरह के कामों पर आमादा किया जाता है कि वो अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दे, ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या कहेंगे? और ऐसे तो बहुत सारे नौजवान हैं जो अब भी इसी मसाइल में घिरे हैं. जी, बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से नौजवान हैं. ये अभी हम पूरे मुआशरे का फ़र्ज़ बनता है, स्टेट का फ़र्ज़ बनता है, वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़ानदान के अंदर भी देखें, अपने नौजवानों की सरगर्मियों की तरफ तवज्जो दें. ख़ास तौर पे वो जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे फैकल्टी के ऊपर एक स्क्रूटनी होनी चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं जो कि गुमराहकुन रास्ते पे चलाते हैं बच्चों को और उनको वर्गला के अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. और ये खुदकश हमलों पे तैयार करना, उसके लिए इंड्यूसमेंट्स दी जाती हैं, नारकोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, फिर उनको गलत आइडियोलॉजी पे चढ़ाते हैं, फिर उनको कुछ अट्रैक्टिव इंसेंटिव देते हैं. और हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी इंसेंटिव दिए हों जिसमें वक्ती तौर पे इंसान बहक जाता है और फिर वो उनके नरगे में इस तरह से आता है कि फिर वो ब्लैक मेलिंग का भी एक एलिमेंट आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें माशरे को भी देखना है, वालिदैन ख़ास तौर पे, फैकल्टीज़ की स्क्रूटनी होनी चाहिए. और हमें जो पूरा जो माशरा है उसको, ये बच्चों को इस तरफ और यंग जनरेशन को इससे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए. ये सब का फ़र्ज़ बनता है, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच चाहिए. राशिद वली साहब, आप नहीं समझते कि स्टेट को इस तमाम तर जो प्रोसीजर है उसको अपनाते हुए एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि जब लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो ज़ाहिर है अपनी जान को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही दीगर लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. माइंड वॉश हो जाना, उसके बाद ये समझ ना आना कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ऐसे में स्टेट को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी मेनटेन नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए. और इसमें हमें चाहिए कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और तालीमी इदारे हैं इन पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उसमें किस किस्म की क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट हो रही है, क्या आइडियोलॉजी वहाँ पे सिखाई जा रही है, वहाँ फैकल्टी का ज़हनी जो रुझान है वो किस तरफ है. कहीं वो रॉ का कोई आला कार तो नहीं कोई फैकल्टी मेंबर की आड़ में आके यंग बच्चों के जहनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा इकोसिस्टम है, इसको देखने की ज़रूरत है. बिल्कुल, आपने कहा कि हैको सिस्टम है उसको देखने की ज़रूरत है. लेकिन राशिद वली साहब, यहाँ पर बात एक ये भी आ जाती है कि जब आप माइंड वॉश करते हैं तो ये कौन से लोग होते हैं जो कि एक टारगेट को फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं? क्योंकि टारगेट फेस करना, उसके बाद ख़वातीन को वर्गला देना, नौजवानों को वर्गला देना, ऐसे हमने बहुत वाक़यात प्रीवियसली भी देखे. जब चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ उसमें भी एक ख़वातीन खुदकुश बमबार जो है वो वहाँ पर मौजूद थी. बहुत सारी चीज़ें हमने इस तरीके से माजी में भी देखते हुए आए हैं. तो इस पर क्या ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब होनी चाहिए जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, ये इसमें पैसे का इस्तेमाल होता है, इसमें मटेरियल इंड्यूसमेंट्स का इस्तेमाल होता है, हो सकता है बाहर ले जाना, आला तालीम देना, वो तरगीब दी जाती हो, नारकोटिक्स का इस्तेमाल हो, ये मल्टीपल जो ये इंसेंटिव्स होते हैं उसका इस्तेमाल होता है. और ये तो स्टेट का काम है, मुआशरे का काम है, तालीमी इदारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी इंतज़ामिया का काम है. और जो गवर्नमेंट्स होती हैं प्रोविंस की, उनको बड़ा असर्टिव होना चाहिए कि नौजवानों को ख़ास तौर पे तामीरी और मुस्बत सरगर्मियों में इन्वॉल्व रखें, उन पे स्पेंड करें, उनको इन लोगों के नरगे में जाने से बचाएं. और हमारा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है उसको भी फ़हाल होने की ज़रूरत है कि वो यूनिवर्सिटियों में ये चीज़ देखे कि ये किस किस्म के लोग हैं जो कैसे इनको अपने दाम में लाते हैं और अपने जाल बिछाते हैं इनके लिए. तो वो मेरा ख्याल है कि ये स्टेट और सोसाइटी दोनों के कॉम्बिनेशन से ये काम होगा.
अच्छा राशिद वली साहब, जिस तरह से अदीला ने आज कहा कि ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, यानी आप ये समझते हैं कि शायद इनके पास बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है जो कि बैकग्राउंड से लेके ये लोग चलते हैं और इसी तरीके से कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि गैदर करते हैं जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग होती है और वो ये काम करने पे मजबूर करते हैं? डेफिनेटली देखिए ना, आजकल तो बहुत वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ये जो हमारा एक सोशल मीडिया लैंडस्केप है, इस पे कोई आपको मालूम नहीं है कि कौन किस तरीके से किसी के लिए जाल बिछा रहा है, मुश्किलात खड़ी कर रहा है, वहाँ ब्रेन वेशिंग कर रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्दों के लिए रिक्रूटमेंट भी होती रही है, और यहीं से ये लोग जो यंग जनरेशन आजकल इसको बहुत इस्तेमाल करती है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है, और उनको किसी तरीके से भी इंड्यूसमेंट्स दे के अट्रैक्ट करके ये गलत राह पे चढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए माशरे की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अभी ख़ास तौर पे ख़ानदान से ये चीज़ शुरू होनी चाहिए, तालीमी इदारों तक जानी चाहिए, उसके बाद जो स्टेट है, प्रोविंसेस हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि नौजवानों पे उनको तामीरी और मुस्बत सरगर्मियों में इन्वॉल्व करें, उन पे तवज्जो दें, उन पे इन्वेस्ट करें, उनके लिए ऑप्शंस दें ताकि वो इस तरफ देखें ही ना। बिल्कुल, आपने कहा जैसे इन्फॉर्मेटिव कैंपेन्स ज़रूरी है इसके लिए, जब तक कैंपेन्स नहीं होंगी तब तक लोगों को जो है वो शऊर नहीं आएगा, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो हम देख रहे हैं कि लोग जो है मशगूल होते हुए जा रहे हैं। क्या वो अपने माइंडसेट्स पे काबू नहीं रख पाते? हिप्नोटाइज का एक कोई तरीका होता है या क्या ऐसी बातें होती हैं इनके पास, या किस तरीके का सर्कल होता है जिसके अंदर ये इन्वॉल्व होते चले जाते हैं? ये फ्रस्ट्रेशन है माशरे में ना, फ्रस्ट्रेशन हैं, गुर्बत है, बहुत से दीगर अवामिल होते हैं, लैक ऑफ चॉइसेस होती हैं, लैक ऑफ मेरिट है, कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं, तो वो सारे उसको ही एक्सप्लॉइट करते हैं। पैसा बेपनाह इस्तेमाल हो रहा है, रॉ ने पूरी वो एक कॉन्डुइट खोली हुई है, और पैसे की इनको कमी नहीं है कि जो लोग इनको बहकाते हैं, गलत लाइन पे चढ़ाते हैं। वो फैकल्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं। यूनिवर्सिटियाँ जो अभी देखें, तुरबत यूनिवर्सिटी में वो माहिल साहिबा पे काम हुआ, उनको वर्गलाया गया, कराची यूनिवर्सिटी में, मतलब ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो उन यूनिवर्सिटियों के अंदर भी उनका नफूज हो चुका है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है एज अ माशरा, एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट, ताकि ऐसे एलिमेंट्स जो पैसे के बलबूते पे साजिशें करके साजिशी बयानिए और उनके पीछे स्ट्रेटजी उसकी कमी कोई नहीं है, वो उनको पीछे से जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ जैसी, वो उसको फीड कर रही हैं। अब ये वालिदैन का काम है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी सरगर्मियों पे ख़ास तौर पे उसकी कड़ी निगरानी करें, बच्चियों का ख़ास तौर पे, ताकि वो कहाँ जा रही हैं, उनका सोशल मीडिया पे क्या इंटरेक्शन है, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन में क्या चेंजेस आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको ऑप्शन दें लाइफ में, उनको इन्वॉल्व रखें मस्बत तामीरी चीज़ों में, और एक किस्म का ताकि फायर वॉल क्रिएट हो जो इस किस्म की नेगेटिव इंड्यूसमेंट्स होती हैं। राशिद वली साहब, जैसे कि आपने कहा कि उनको मस्बत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखें, लेकिन ख़वातीन जो अब अदीला की बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी, एक क्वालिफाइड नर्स थी और जॉब भी कर रही थी, और जिस तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ को बयान कर रही थी कि मैं किस तरह से अपनी ड्यूरिंग लाइफ चीज़ें कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसी टैक्टिक्स में आ जाना, इस तरह के सर्कल में इन्वॉल्व हो जाना, या लोग जो इर्द गिर्द के होते हैं या जो माहौल होता है उसमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि इस तरह से वर्गला कर ले जाया जाता है। प्लीज होल्ड ऑन। राशिद वली साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम आपको बताते चलें कि अदीला बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझे वर्गला कर ले जाया गया, मैं उस पर शर्मिंदा भी हूँ काफ़ी, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसके अंदर मेरा माइंड वॉच किया गया। मैं बदकिस्मती से ऐसे लोगों से राब्ते में रही जिन्होंने मुझे बहकाया। मैं पहाड़ों पे गई तो मुझे गलती का एहसास हुआ। मैं ख़ुद को हमला करने पर आमादा हो गई थी। बलूचिस्तान हुकूमत के शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं बच गई। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, ऐसा कहना था अदीला बलोच का। उन्होंने कहा कि लोग मुझे वर्गला कर ले गए, ऐसे लोगों की बातों में आकर मैंने अपना ही नुकसान किया। दहशतगर्द बलूचिस्तान में खुदकुश हमलों के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़े गुनाह से बच गई। अदीला बलोच ने कहा कि दहशतगर्द हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि उनकी वालिदा की जानिब से कह रहा था कि ख़वातीन को दहशतगर्द अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वालिद ने कहा कि मैंने तनख्वाह से घर चलाया। फ़रा अजीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ज़ाहिर है बहुत सारे इसमें सवालात भी खड़े होते हैं, और जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, बहुत सारे टूल्स अपनाए जाते हैं, एक सर्कल क्रिएट किया जाता है और ख़वातीन को वर्गला कर ले जाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ریاستی اداروں کی اور حکومت بلوچستان کی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ ایک بہت بڑا جو ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے مسنگ پرسنز کا, اس کا بھی ایک ایشو ہائی لائٹ ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ عدیلہ خدا نہ خواستہ یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں آ کے اور یہ جو واقعہ وہ کرنا چاہ رہے تھے اس میں اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو کل کو پھر یہ عدیلہ کا نام بھی مسنگ پرسنز میں آ جاتا. تو یہ مسنگ پرسنز کی جو ایک سٹوری ہے اس کا بھی جو آپ دیکھیں کہ پول کھل گیا ہے اسی کے ذریعے. اور پھر ہماری بچے بچیوں کو جس طریقے سے برین واشنگ کر کے کہ ایک پاورٹی کے حوالے سے یا جو ایجوکیشن کی کمی کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کے اور ہمارے بچے بچیوں کے برین واش کرتے ہیں. پھر آپ نے عدیلہ کا بیان سنا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ 3 دن وہاں پہاڑ پر رہی اور وہاں پر کچھ اور بھی بچے بچیاں وہاں پر موجود ہیں اور کتنا بدحالی میں انہیں وہاں پر رکھا جا رہا تھا. میں یہاں پر بلکہ مبارکباد پیش کروں گی کہ ان کے جو فادر ہیں, دیکھیں یہی مثال جو ہے ہم نے سامنے لے کے آنی ہے اور ہم نے تمام والدین کو بلوچستان کے اور اسپیشلی ہمارے اساتذہ کو بھی, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جیسے ہی اپنی حکومت سنبھالی تو انہوں نے یہ ایک کھلا پیغام دیا تھا اور ایک اویئرنیس کیمپین کا بھی آغاز کیا گیا تھا تمام اراکین کی جانب سے بھی کہ وہ اپنے علاقوں میں رابطوں کو تیز کریں اور یہ پیغام ضرور بھیجیں کہ جس طریقے سے ان کی برین واشنگ لوگوں دشمن کر رہے ہیں تو ہم ایک اویئرنیس کیمپین کا آغاز کریں. تو یہ بہت بڑا اچھا میں سمجھتی ہوں کہ بہادری کا مظاہرہ تھا عدیلہ کے فادر کی جانب سے بھی. اور اس طریقے سے اگر جو فرح صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے, جو نوجوان ہیں ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے, اس کے لیے اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں. مختلف یونیورسٹیز اور اسکولز کے اندر یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ جاری رہیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ دشمن جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ بری طریقے سے ناکام ہوں. اور ساتھ ہی جس طرح سے عدیلہ کی مثال انہوں نے دی کہ عدیلہ نے جو ہے وہ مقابلہ کیا, ان کے والد کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کے والد جو ہے وہ فرنٹ پہ آئے, انہوں نے تمام تر اسٹوری بیان کی کہ کس طریقے سے ان کی بیٹی کو ورغلا کے یہاں سے لے جایا گیا, بہکا کر یہاں سے لے جایا گیا. اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے پروان چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ دشمن جو ہے وہ نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور تمام تر جو اقدامات ہیں اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹجیز مرتب کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ ہم جلد سے جلد جو ہے وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بھی بازیاب کرائیں کیونکہ مسنگ پرسنز کی ایک کڑی جو ہے وہ ادھر سے بھی ملتی ہے کیونکہ جب ہم لوگ کسی بھی ایکٹیویٹیز کے اندر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اچانک سے مسنگ ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی ایک کڑی یہاں سے جو ہے وہ جڑ سکتی ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے برین واشنگ کر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس طرح کے اویئرنیس پروگرام کو ترتیب دینا چاہتے ہیں جو کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہوں, اسکولز کے اندر بھی ہوں اور جتنے بچے ہیں وہ ان اویئرنیس پروگرام کو دیکھیں. اور تمام تر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ سرکل کے اندر موجود ہوتے ہیں یا ارد گرد کہیں بھی ایسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آتے ہیں ان بچوں سے جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جب آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو تمام لوگوں کو اپنا مائنڈ جو ہے وہ اویئر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنا مائنڈ اویئر نہیں رکھیں گے تو وہ کسی بھی طرح کے حادثے سے دو چار ہو سکتے ہیں. تربت سے گرفتار خاتون خود کو حملہ عدیلہ بلوچ نے پریس کانفرنس کی. ساتھ ہی فرح عظیم شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی اور انہوں نے ہم سے بھی بات کی ہے. آج نیوز سے بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا کہ اویئرنیس پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں اور جلد از جلد کوشش یہی ہے کہ تمام تر جتنے بھی ضلع ہیں, چھوٹے بڑے پسماندہ علاقے ہیں یا مختلف یونیورسٹیز ہیں, اسکول ہیں, وہاں پر اس طرح کے اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اویئرنیس حاصل کر کے اس تمام تر جو ایک کہتے ہیں سرکل ہے جو کہ مینٹین ہوتا جا رہا ہے اس سے باہر نکل کے آئیں. اور کافی نوجوان ایسے ہیں چاہے وہ خواتین ہوں اور یا لڑکوں کی تعداد کیوں نہ ہو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز سے باہر آئیں اور ہم جو ہے کامیابی کے ساتھ یہ تمام تر آپریشن شروع کریں. اور عدیلہ کو ہم نے کامیابی سے جو ہے وہ باہر نکالا ہے. عدیلہ خود بھی جو ہے وہ تمام تر چیزیں اپنے
ज़बान से बयान कर रही थी। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं बदकिस्मती से ऐसे लोगों से राब्ते में रही जिन्होंने मुझे बहकाया। मैं पहाड़ों पे गई तो मुझे गलती का एहसास हुआ। मैं ख़ुद को हमला करने पर आमादा हो गई थी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं बच गई। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग मुझे वर्गला कर ले गए। ऐसे लोगों की बातों में आकर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में खुदकुश हमलों के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़े गुनाह से बच गई। दहशतगर्द हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। साथ ही उनके वालिद की जानिब से कहना था कि मैंने तनख्वाह से घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया। बेटी के लापता होने के बाद कर्ब और मुसीबत से वक्त गुजारा। अपनी तनख्वाह से घर का खर्च और बच्चों को तालीम दिला रहा हूँ। मैं बैंक मुलाजिम हूँ, कराची में नौकरी करता हूँ। जबकि उनके वालिद ने यह भी कहा कि दहशतगर्द लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की वजह से मेरी बेटी बाजियाब हुई। मैं पहाड़ों में 3 दिन रही, सख्त हालात थे। अदीला बलूच ने तमाम तर जो रुदात है वो भी सुनाई और साथ ये भी कहा कि पहाड़ों में मेरे अलावा एक और लड़की भी मौजूद थी। उस लड़की को भी वर्गला कर वहाँ पर लाया गया। मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन थी, लेकिन जब मैं पहाड़ों पर गई और 3 दिन मैं वहाँ रुकी तो मैंने देखा कि हर एक शख्स के हाथ में असलहा मौजूद है और वहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी डिफरेंट था। और मैं काफ़ी घबरा भी गई कि मैं किस राह पर आ गई हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और इसी तरीके की एक्टिविटीज़ उन्होंने कहा कि मैंने देखी। और साथ एक लड़की जो कि वहाँ पर मौजूद थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से, उसका ताल्लुक़ है, वो कहाँ से आई थी, लेकिन वो उसको भी वर्गला कर लेकर आया गया था, माइंड वॉश करके लेकर आया गया था। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी माइंड वॉश करके वहाँ पर ले जाया जाता है और इस तरह की जो काम हैं उनमें मुलव्वस पाए जाते हैं वो नौजवान। और ख़ुदकुश बमबार जो होते हैं वो भी इन्हीं में से होते हैं जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक जॉब कर रही थी, नर्स हूँ, मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ और मैं वहाँ पर जॉब भी करती हूँ। साथ ही इस तरह के लोग जो कि मुझसे टकराए उनसे मैंने रब्ता किया। मैं ऐसे नेटवर्क के साथ जुड़ गई जिन्होंने मुझे बहकाया और लोगों ने इस तरीके की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होती हुई मैं चली गई। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट हुई। मिसिंग पर्सनस का भी एक हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक कड़ी जुड़ी है। जैसे कि फराह साहिबा ने भी कहा कि जो मिसिंग पर्सनस हो जाते हैं उनकी भी एक कड़ी कहीं ना कहीं इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। अदीला की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इतराफ़ी बयान और इतराफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस खातून का, बच्ची का, जिसने इतराफ़ किया है कि वो किस तरह से एक तालीम हासिल करने के लिए कोयटा में आई और नर्सिंग का उसने एक कोर्स किया और उस दौरान उसको बहकाया गया, बरगलाया गया और बरगला कर उसको अपने ही पाकिस्तान के शहरियों पर, अपने ही इमलाक पर खुद के हमलों के लिए उकसाया गया, बरगलाया गया। ये बड़ा अहम इतराफ़ी बयान है। इससे वो सारी कहानी, सारी दास्तान गुज़श्ता चंद माह में जो बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने कौमियत परस्ती के नाम पर, कुछ लोगों ने अलग की जिंदगी के नाम पर और कुछ लोगों ने हकूक़ के नाम पर एक बयानिया खड़ा हुआ था। और उस बयानी के बारे में हमारे यहाँ लोग कहते थे कि ये बयानिया जो है हकूक़ के नाम पर एक गलत बयानिया है, गुमराह कौन बयानिया है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान के दुश्मन है, बलूचिस्तान के दुश्मन है और पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, जो कि नौजवानों को, बिल्कुल ख़वातीन को बरगला कर हकूक़ के नाम पर, उनकी महरूमी के नाम पर, उनके दाखिलों के मामला, उनके नौकरियों के मामला और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनके, जिसका किसी भी पाकिस्तान के आम शहरी को सामना हो सकता है, उनको बरगला कर पाकिस्तान के खिलाफ की जिंदगी की तहरीक चलाने के लिए बरगलाते हैं, उनको हमलों पर उकसाते हैं, उनको फोर्सेस पर हमलों पर उकसाते हैं, उनको जो कौमी इमलाक हैं, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है, रेलवे लाइनें हैं, दफातर हैं, दीगर जो अहम तनसीबात हैं उन पर हमले के लिए उठाते हैं। और साथ साथ जो है एक मुनज़्ज़म वावेला किया जाता है, मुनज़्ज़म मुकाबला किया जाता है मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए और अब सोशल मीडिया के जरिए तासर ये दिया जाता है कि जो फोर्सेज हैं वो नौजवानों को पकड़ती हैं, उनको अगवा करती हैं, उनको अपने बेजा में रखती हैं और अल्टीमेटली उनको मार दिया जाता है। ये एक बयानिया था जो कि करा गया, जिसको प्रोपोगेट किया जाता था। अब ये इस तरह का पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी बहुत से लोग गिरफ्तार किए, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत से लोगों ने खुद रज़ाकाराना तौर पर आके अपने आप को पेश किया अदारों के सामने और ये बताया कि किस तरह से एक पूरा तरीकाकार है। नौजवानों को पहाड़ों में ले जाया जाता है, पहाड़ों में ले जाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, ब्रेन वॉशिंग करने के बाद उनको हथियार दिया जाता है और इस सारी मुहिम के पीछे हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक कभी कबूल नहीं किया, पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया।
और अब वो एक 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं जिसमें दुश्मन खुद सामने नहीं आता, बल्कि उसी मुल्क के उसी सरजमीन के लोगों को, साधारण लोगों को, तो नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है जिनको बरगलाना आसान होता है। तो ये जो अदीला बलोच सभा का एतराफ़ है जिसमें उसने कहा है कि लोग जो थे मुझे लेकर गए और वहाँ जाके तरबियत दी, और तरबियत के दौरान उसने ये इशारा दिया है कि वहाँ इस तरह के लोग थे जो आमतौर पर बलूचिस्तान में नहीं होते। यकीनी तौर पर उनका इशारा उन लोगों की तरफ है जिनका ताल्लुक मेरे मुल्क से नहीं है, आपके मुल्क से नहीं है, बल्कि वो कई बाहर से आते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, पैसा देते हैं, तरबियत देते हैं, फरार में मदद देते हैं। सही, ये वो लोग होते हैं जो लोगों को वर्गला के ले जाते हैं और इस तरह के कामों में आमादा करते हैं। और जिस तरह से अदीला ने भी तमाम तर अपनी सिचुएशन को बयान किया कि किस तरह से उसे पहाड़ों पर ले जाया गया, वहाँ पर एक ख़वातीन भी मौजूद थी, वो कहाँ से आई थी उन्हें नहीं पता और वो वहाँ से बच के निकली हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था, आपका बहुत शुक्रिया।